Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystified, and as we're continuing with the course of Bachelor's of Honors Philosophy, BA Honors Philosophy, and we're currently into our semester 2. मैंने already semester 1 के disciplines 1, 2, 3 आपके साथ cover कर लिए हैं on my channel YouTube. Now we are covering with discipline 4, 5, 6, that is Fundamentals of Philosophy, Greek Philosophy and Ethics. तो हमने Fundamentals of Indian Philosophy का Unit 1 पूरा complete कर लिया है, एंड एथिक्स के भी मैंने दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. हमने इसके पहले वाले वीडियो में एथिक्स के बारे में वी रेड अबाउट द प्रोविजनल डेफिनेशन ऑफ एथिक्स एंड द डिफरेंट मॉरल साइंसेस दैट आर देयर, और अब हम लोग करेंगे द डेटा एंड मेथड्स ऑफ एथिक्स एंड व्हाट आर द यूज ऑफ एथिक्स इन डिफरेंट सेक्टर्स. तो लॉक के बारे में आपने सुना ही होगा, लॉक द इंग्लिश फिलोसोफर. हमें जनरली फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे लॉक के बारे में बहुत सुंदर, जैसे जीन जे क्रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ऐसे ही लॉक. So he said, but God has not been so sparing to men to make them barely two-legged creatures, and left it to Aristotle to make them rational. He has given them a mind that can reason without being instructed in methods of syllogizing. A similar remark might be made about man's powers of distinguishing right and wrong. God has not left it to the professors of ethics to make men discover the difference. It is not the business of the moralist to create moral standards out of nothing. He lives himself in a social environment where certain moral standards, however vaguely expressed and imperfect they may be, are accepted, and these standards serve as his data or material. तो इसका मतलब क्या देखें, so basically इसमें यही बताया जा रहा है that it's not the job of a moralist of an ethics professor to decide what is right and wrong. कि गॉड ने एक इंसान को अपना खुद का माइंड दिया है, अपना खुद का रैशनल दिया है, फ्रॉम विच इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. The value, it is not the business of the moralist to create moral standards out of nothing. Moralist out of nothing कुछ भी create नहीं करते हैं. Right? He lives himself in a social environment where certain moral standards, however vaguely expressed and imperfect they may be, are accepted, and these standards serve as his data or material. So basically आप बहुत clearly आपको समझ आ रहा होगा कि एक moralist जो है वो खुद से कोई भी चीज़ का creation नहीं कर रहा है. एक moralist एक ऐसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पर पहले से ही moral standards already दिए हुए हैं, वो उस level से अपना work start करता है. The value of the work of students of the positive science of morals, like Westermarck, is that they describe the standards that do exist now or have existed in the past accurately and systematically, and not with the inaccuracies and the bias that have been the common characteristics of travelers' tales. So basically इसमें यही समझाया जा रहा है कि it is not, जो भी students हैं, जो भी morals हैं, उनका काम कुछ नया create करना नहीं है. They just have to work with what exists already. There certainly appear to be inconsistencies and contradictions in these established moral standards, although modern sociologists are of the opinion that these have been exaggerated by those who have failed to understand or describe them properly. It is the first business of the student of ethics to reveal these inconsistencies between generally accepted standard norms and to show how these can be removed without making more than necessary alterations in the accepted standards. So, I'm sorry, I missed a little. ऑफकोर्स बहुत सारी कंसिस्टेंसीज होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होती है, कॉन्ट्रडिक्शंस होती है. जो मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज़ वो सही है. इनमें ही हम आपस में देखते हैं. अब जैसे अगर आपको हम बात करें कि जैसे मोहम्मडन्स हैं एंड क्रिश्चियंस हैं, फॉर मोहम्मडन्स दी एग्जिस्टिंग मॉरल स्टैंडर्ड स्टेट दैट दे कैन मैरी मोर देन वंस, दे कैन हैव मोर देन वन वाइफ, एंड फॉर क्रिश्चियंस इट इज नॉट ट्रू. दे कैन नॉट, फॉर देम टू हैव मोर देन वन वाइफ मीन्स कि इट इज अ काइंड ऑफ अ सिन और समथिंग. So already existing moral standard है जो एक दूसरे को contradict कर रहे हैं. It is the first business of the student of ethics to reveal these inconsistencies between generally accepted standards and to show how these can be removed without making more than necessary alterations in the accepted standards. तो यही इनकन्सिस्टेंसीज को, यही कॉन्ट्रडिक्शंस को, डिफरेंसेस को कैच करने का काम स्टूडेंट ऑफ एथिक्स का है, और कैसे हम अभी जो हमारे एक्सेप्टेड मॉरल स्टैंडर्ड्स उनमें विदाउट मेकिंग मच ऑल्टरेशंस हम लोग उनको भी हटा सकते हैं. जैसे कि सती प्रथा हो गया, Right, Sati Pratha is one of them. How we removed it without making much alterations to the working of the society.
The best way of doing this is to try to discover if any moral general principles underlie these standards, and this is the next step in this method. तो इसका करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर कोई और जनरल प्रिंसिपल्स है जो इन स्टैंडर्ड्स को अंडरलाई करते हैं, अगर कोई और जनरल प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करते हैं, he will do this very much in the way that the physical scientist discovers the law. जैसे कि एक physical scientist, physical sciences वाला जो scientist है वो एक law discover करता है, किसी law के बारे में पता करता है, उसी तरीके से वो ऐसे general principles के बारे में एक student of ethics पता करेगा. उनका examination और classification of commonly accepted moral rules will suggest to his mind some hypotheses. For example, the hypothesis of the hedonist that the actions commanded by moral rules are all actions which cause pleasure. Okay, तो जितनी भी commonly accepted morals, हम लोग बहुत ही commonly accept कर लेते हैं कि we should not lie. This is a very commonly accepted moral rule. Yeah, we should not steal. ओके तो ये जो मॉरल रूल है ये सजेस्ट करते हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ हाइपोथेसिस फॉर स्टूडेंट ऑफ एथिक्स कि कोई पहले से कोई इस्टेब्लिश हाइपोथेसिस है, पहले से इस्टेब्लिश थॉट है जिसकी तरफ हम काम कर रहे हैं. जैसे कि द हाइपोथेसिस ऑफ द हीडोनिस्ट दैट द एक्शंस कमांडेड बाय मॉरल रूल्स आर ऑल एक्शंस व्हिच कॉज प्लेजर. तो जैसे हीडोनिस्ट है, ओके हेडोनिस्ट का मॉरल स्टैंडर्ड्स को कैसे वो एनफोर्स करते हैं. दे हैव अ हाइपोथेसिस कि अगर आप मॉरल एक्शंस से चलेंगे तो इट विल ब्रिंग यू प्लेजर. तो आप समझ रहे हैं कि हाउ दे आर मेकिंग, जैसे हम लोग गॉड हम बहुत तरीकों से करते हैं, जैसे कि मैंने हाइपोथेसिस कि आप अगर अच्छे मॉरल काम करोगे तो आपको फिर आगे जाके हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा. सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ हाइपोथेसिस. एक स्टूडेंट ऑफ एथिक्स क्या करेगा, इस हाइपोथेसिस ये देखेगा कि ये क्या हाइपोथेसिस, ज्यादातर लोग इसको मानते हैं और उसको पर्टिकुलर केसेस में अप्लाई करके देखा कि यहाँ पर अगर एक इंसान ने बिल्कुल मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ वर्क किया है सो क्या उसकी वजह से उसे प्लेजर मिला है. अलग अलग सर्कमस्टांसेस में वो इस हाइपोथेसिस को अप्लाई करके चेक करेगा. अगर उसे पता चलता है कि ज्यादातर केसेस में जहाँ पे जो मैन ने एक्शंस करे हैं वो मॉरल है, गुड एक्शंस करे, लेकिन उसके बावजूद प्लेजर नहीं आया, तो वो इस हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करेगा या फिर इसको कुछ चेंज करेगा. अगर स्टूडेंट ऑफ एथिक्स देखते हैं कि ज्यादातर केसेस में जहां उसने ये देखा है कि मॉरल स्टेप्स फॉलो करने के बावजूद प्लेजर कॉज नहीं हुआ, मतलब हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, तो वो उसको बदलेगा या चेंज करेगा या फिर हटा देगा. और अगर ऐसा होता है कि हाँ हाइपोथेसिस सही होती है कि अगर किसी ने सभी मॉरल एक्शंस फॉलो करे या इससे एक्चुअली उसको प्लेजर आया तो वो इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेगा. लेकिन अभी तक मॉरलिस्ट जो है वो अभी तक किस टास्क में उलझे हुए, द डिस्क्रिप्टिव साइंस, कि एथिक्स जो है वो एक नेचुरल साइंस है, अभी तक इसी टास्क में वो उलझे हुए हैं. उनका एम ये डिस्कवर नहीं करना है कि विच मॉरल प्रिंसिपल्स आर एक्सेप्टेड बाय ऑल मेन. उस एक मॉरलिस्ट का काम ये एक्सेप्ट करना नहीं कि ऐसे कौन से मॉरल प्रिंसिपल्स है जो सभी लोग जिसको एक्सेप्ट करते हैं. उनका एम है ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करना जो सभी मेन को एक्सेप्ट करना चाहिए. दे ऑट टू एक्सेप्ट, दे शुड एक्सेप्ट. ठीक है, भले ही वो ऐसा करते हैं या नहीं. एक मॉरलिस्ट का काम ये डिस्कवर करना नहीं कि अच्छा ऐसे कौन से मॉरल प्रिंसिपल्स है जो जिस पे सभी लोग अग्री करते हैं, हम उनको मॉरल प्रिंसिपल स्टेट करेंगे. नो, His task is to find out कि कौन से moral principle सभी men को accept करना चाहिए regardless of anything else. भले ही वो ऐसा करते हो या नहीं. उनका टास्क है critical. His task is the critical one of seeing which moral principles can survive examination. ऐसे moral principles को ढूंढना जो हर circumstances में भी survive कर पाए. एक स्टेप है इस एग्जामिनेशन का कि जो हम ऑलरेडी पहले मेंशन कर चुके हैं, द मॉरलिस्ट कंपेयर्स एग्जिस्टिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स टू सी इफ द इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन देम कैन बी रिमूव्ड बाय वाइडर प्रिंसिपल्स. कि एक काम है ये कि जो अभी मॉरल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको आपस में कंपेयर करना. जैसे मैंने आपको वाइफ्स की बात बताई, मोहम्मडन्स कैन हैव मोर देन वन वाइफ, क्रिश्चियंस कैन नॉट. तो ये दो एग्जिस्टिंग मॉरल प्रिंसिपल्स, अब इन दोनों को कंपेयर करना, which one would bring better results, which one is better for the society, कौन सा प्रिंसिपल ज्यादा एथिकल है, ज्यादा मॉरल है. ओके, इट्स गिविंग द सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, आई थिंक मैंने यहीं पर पढ़ा था.
तो कई से इनकंसिस्टेंसीज होती है जिनको आप हटा नहीं सकते, जैसे यही मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी, यू नो, हैविंग वन वाइफ और हैविंग सेवरल वाइफ्स। देखो अब जब मोनोगैमी मतलब सिर्फ सिंगल वाइफ, सिंगल मैरिज, एंड पॉलीगैमी मतलब यू कैन हैव मोर देन वन वाइफ। अब मॉरलिस्ट ये उसको दिखाना पड़ेगा कि या तो मोनोगैमी हमेशा सही है या पॉलीगैमी कभी कभार सही, मतलब कि a majority of mankind regard monogamy as always right, or the fact that this view fits in better with the other moral opinions of most men may suggest its correctness, but they certainly do not prove its correctness। ठीक है, इससे हो सकता है कि अगर ज्यादातर लोग, ठीक है मोहम्मडन्स एक ग्रुप है जो उसको नहीं मानता, लेकिन अगर हम बाकी ग्रुप्स के साथ कंपेयर करें तो ज्यादातर ग्रुप्स में पॉलीगैमी को डिसरिगार्ड करा हुआ है, या ज्यादातर जो ह्यूमंस है उनका मानना है कि मोनोगैमी इज द बेटर वे, इज द करेक्ट थिंग टू डू, यू शुड नॉट हैव मोर देन वन वाइफ, इट्स रॉन्ग। तो वो उसकी करेक्टनेस को सजेस्ट कर सकता है, वो उसकी करेक्टनेस का एक एविडेंस हो सकता है। इसका मतलब अगर ज्यादातर लोग किसी चीज को मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली उसका प्रूफ है कि हाँ वो प्रूफ है कि हाँ मोनोगैमी इज करेक्ट। It looks as if the moralists were left to decide the question by his own direct insight or intuition, and it is certainly the case that direct or intuitive judgment plays a far larger part in the normative sciences and especially in ethics than it does in physical descriptive sciences. तो yes, हमारा जजमेंट, हमारा कॉन्शियंस, हमारा इंट्यूशन, व्हाट वी थिंक, आवर ओपिनियन प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन एथिक्स। एक हो सकता है इंसान, एक थिंकर हो सकता है जिसको लगता है कि मोनोगैमी हमेशा राइट है, और वो यही मेंटेन करेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो जाए, वो हमेशा पॉलीगैमी को डिसरिगार्ड करेगा कि टू हैव मोर देन वन वाइफ इज सिंपली रॉन्ग। एक थिंकर ऐसा सोच सकता है, या हो सकता है कि ही मे फाइंड इट सेल्फ एविडेंट दैट बाय कॉलिंग एन एक्शन गुड वी मीन नथिंग एल्स एंड द एक्शन कॉजेस प्लेजर। तो हो सकता है कि वो थिंकर यही बोलेगा कि अगर हम बोल रहे कि ये एक्शन अच्छा है तो अच्छा इसीलिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हमें प्लेजर या हैप्पीनेस देगा। वी ऑल ऑफ अस, ordinary men and moralists alike, have such intuitions, and as long as we have them, we must find a place for them in our ethical system. तो हमारे पास ऐसे इंट्यूशंस होते हैं कि यार हम अच्छा काम करेंगे, मॉरल स्टैंडर्ड्स को झूठ नहीं बोलेंगे तो हमें ही खुशी होगी, हमारे लिए बेहतर होगा। What the holder of an intuition often forgets is that there is nothing infallible about such an intuition. When two intuitions contradict one another, one is necessarily false, and this sometimes does happen. If by experience or ethical theory it is shown that an intuition leads to self-contradictory or absurd consequences, then it must be given up. तो ऐसे कई बार होते हैं कि इंट्यूशन जो है वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है। कैसे? देखिए, this is the form taken by a good deal of debate on ethical matters. So long as the hedonist, for example, is ready to accept the consequences of his theory, that there is no refuting this theory. It is when his opponent can show him that hedonism leads to some consequence that the hedonist is not prepared to accept that the theory is shown to be false. तो एक hedonist उनकी थ्योरी को सही ही मानेगा जब तक कोई दूसरा आके उनकी थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करके उसको गलत ना बताए कि हाँ आप जो थ्योरी बोल रहे हो कि moral action always brings pleasure, that is a wrong hypothesis. जब तक वो नहीं होगा तब तक वो खुद अपनी हाइपोथेसिस या थ्योरी को करेक्ट ही मानेंगे। These are the only reasons why the intuitions of the moralist can deserve more respect than those of the ordinary man. तो ये एक रीजन है कि एक मॉरलिस्ट का इंट्यूशन ऑर्डिनरी मैन से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक ऑर्डिनरी मैन जो होता है ना, हम लोग जो होते हैं, व्हाट वी डू इज, क्योंकि हमने सिर्फ हमारा सोसाइटी देखा होता है, हमारा कल्चर देखा होगा, वी आर सो बाउंड इन इट दैट वी कांट सीम टू थिंक ऑफ इट एज रॉन्ग। हमारे लिए झूठ बोलना गलत है तो गलत है, हमने कभी सोचा ही नहीं एक ऐसी सोसाइटी के बारे में, ऐसे ग्रुप के बारे में जो हो सकता है जहाँ पे झूठ बोलना सही होगा, जहाँ पे झूठ बोलना एक क्राइम नहीं, मतलब एक गलत नहीं होगा, या ऐसी सोसाइटीज होती है। हमारे लिए मर्डर इज अ स्ट्रिक्ट नो, लेकिन ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ मर्डर्स होते हैं, और ऐसी कम्युनिटीज हैं जो मर्डर्स को बिल्कुल लीगलाइज करते, लीगलाइज इन द सेंस कि उसको सपोर्ट करते हैं। व्हाट अबाउट द ट्राइबल पीपल? हमारे लिए सपोज नॉन वेजिटेरियन, इफ फॉर सम पीपल नॉन वेजिटेरियन इज अ स्ट्रिक्ट नो। हिंदू इंडिया में आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियंस हैं, बट देन देयर आर कंट्रीज वेयर इट इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो यही बात है
कि एक मॉरलिस्ट का इंट्यूशन इज बेटर देन ऑर्डिनरी मैन, क्योंकि ऑर्डिनरी मैन जो है वो बहुत ज्यादा रिजर्व्ड है अपनी थॉट और सोसाइटी की थिंकिंग में. What seems, however, to be self-evident both to the common man and the moralist is not always true. We find this to be the case in other spheres than that of ethics. To the ordinary man in the 17th century, the impossibility of sending a message from England to America within 5 minutes was self-evident. But the modern inventions of telegraph and radio have changed all that. It is the special business of ethics to test our intuitions, both by their own consistency among themselves and by critical comparison of our own intuitions with those of others, and especially with the intuitions which have found expression in widely accepted moral codes. तो यही बात है मोरल का एथिक्स का, मोरालिटी का, यही है कि हम हमारे इंट्यूशंस को बाकियों के साथ कंपेयर करें कि इफ वी थिंक दैट दिस इज समथिंग इज राइट और समथिंग इज रॉन्ग, वी कंपेयर इट विद अदर्स, ताकि हम हमारे उस बबल से बाहर निकल सके कि व्हाट वी आर थिंकिंग मे नॉट बी ट्रू इन ऑल केसेस. Yet, even after such testing, the final judgments still appear to be intuitive. In the light of all our knowledge and experience, we see that a certain course of action is right or that a certain standard is universally valid. तो इन सब की थिंकिंग के बाद भी हम लोगों को ये लगता है कि एक सर्टन कोर्स है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली वैलिड है. हम अपनी एथिक्स की स्टडी ऐसे इंट्यूशंस के साथ शुरू करते हैं जो बहुत ही वेक है, बहुत ही बिखरे हुए से हैं, डिस्टर्ब्ड है, दे आर नॉट वेरी फोकस और अप्रोप्रिएट, प्रेजुडिस्ड है, इनकंसिस्टेंट है. तो हमेशा हमें हमारी स्टडी को ऐसे इंट्यूशंस के साथ एंड करना चाहिए जो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करा है बाय देयर कोहेरेंस विद वन अनदर. Their relative alignment with the most generally accepted moral codes and the continued self-evidence with which they come to our minds after a wide and varied experience of life. तो हम तभी जाकर हमारे इंट्यूशंस को वैलिड, वो मतलब हमें वो एंड करना चाहिए, उनको बारे में यही करना चाहिए कि इफ दे आर एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड उसके बावजूद हम खुद हमारे इंट्यूशन भी उस चीज के साथ एग्री कर रहे हैं. Professor G.C. Field has pointed out that we do not begin a study of ethics with the more or less exact definitions with which we begin a study of geometry. Just as we begin a study of zoology with a vague notion of what a spider is like and end with an accurate scientific description of each species of spider, so we begin ethics with vague intuitions of what is right and what is wrong and should attain to clear insights into objective standards of rightness and wrongness. तो जूलॉजी में जैसे हम स्टार्ट करते हैं विद अ स्पाइडर कि अच्छा स्पाइडर क्या होता है, कैसे होता है, एंड देन व्हेन वी एंड आवर स्टडी हमें स्पाइडर्स के बारे में, स्पाइडर्स की सभी स्पीशीज के बारे में, क्या खाते हैं, कितने बोन्स होते हैं, क्या नहीं होता है, सब चीजों के बारे में पढ़ के छोड़ते हैं. इसी तरीके से एथिक्स में भी हम लोग कुछ वेग इंट्यूशंस के साथ स्टार्ट करते हैं. वी थिंक दैट इज राइट, वी थिंक दैट इज रॉन्ग, और उसके साथ फिर हम बिल्ड करते हुए राइटनेस एंड रॉन्गनेस को एस्टैब्लिश करते हैं. It may be suggested that the analysis which is used in the physical sciences and which many moralists try to use in discovering the meanings of ethical terms is not an appropriate method for ethical study at all. कि हाँ, ये एक और बात यहाँ पर हमें सजेशन, मतलब एक बात यही कही जाती है कि फिजिकल साइंसेज में ना एनालिसिस का यूज होता है, हम लोग एनालाइज करते हैं. ठीक है, तो जैसे बहुत सारे मॉरलिस्ट क्या करते हैं कि एथिकल टर्म्स का मीनिंग डिस्कवर, कि उसका रियल मीनिंग क्या है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. ये एथिक्स की स्टडी में एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है. वी कैन नॉट जस्ट एनालाइज समथिंग. Goodness of a noble action, like the beauty of a great picture, depends so much on the action as a whole than the picking out by analysis of qualities which are good as simply ignores the real nature of action's moral goodness. हम लोग जैसे अगर हम एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर के बारे में बात करें तो हम लोग उसकी पूरी ब्यूटी पे जाते हैं, नॉट जस्ट द गुडनेस ऑफ द सिंगल एलिमेंट इन इट. उसी तरीके से कि अगर हम कह रहे हैं कि इफ एन एक्शन इज गुड, हम उस एक्शन के एज अ होल रेफर कर रहे हैं कि पूरा एक्शन अच्छा था. अगर हम उसके बिट्स एंड पीसेस में देखेंगे दैट एट सम स्टेप ही डिड दैट एंड दैट वाज रॉन्ग, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू स्टडी एथिक्स. It may be argued in reply that such analysis leads in ethics as in other sciences to a fuller understanding
and that the essential thing is only that our final moral judgment should be made on the whole action and not on its analyzed elements. उसके एक एलिमेंट की बजाय पूरे एक्शन को एज अ होल देखना है. वो ही फाइनल जजमेंट जो है वो इंट्यूटिव होना चाहिए. बट इट इज एन इंट्यूशन मॉडिफाइड बाय एनालिसिस एंड कंपैरिजन. तो वो इंट्यूशन है, दैट इज समथिंग आवर माइंड इज सेइंग, बट स्टिल वो हमारा माइंड कह रहा है, लेकिन इवन वो जो कह रहा है वो आफ्टर कंपैरिजन, आफ्टर एनालिसिस ऑफ द एक्शन एज अ होल. When we have arrived at a consistent system of moral principles that appear to be self-evident, and most moralists would admit that they are not fully satisfied with their own systems, we may proceed in two directions. तो हो सकता है बहुत सारे moralists कहेंगे यार हमने जो system create करा, मतलब हमने जिस system को suggest करा है, we are not satisfied with it. तो इसके बाद हम आगे दो directions में जा सकते हैं. We may go in the direction of moral philosophy and show the validity of our principles. तो हम या तो मॉरल फिलोसफी के डायरेक्शन में जा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत वैलिड है, वो जो हमने स्टैंडर्ड्स, जो नॉर्म्स हमने सेट करे कि दे आर वैलिड. और कैसे कि वी प्लेस इट इन द नेचर ऑफ रियलिटी एज अ होल. और वी मे गो इन द डायरेक्शन ऑफ कॉजिस्ट्री. हमने कॉजिस्ट्री इन मॉरल साइंस के टॉपिक में भी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, एंड शो हाउ दीज प्रिंसिपल्स विल बी अप्लाइड इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस ऑफ आवर ओन लाइफ. सो दीज आर द टू वेज. आफ्टर इफ अ मॉरलिस्ट इज नॉट satisfied with their own principles, as they said, they may go in these two directions afterwards. The use of ethics, it's a very small topic now. Ethics is primarily a part of the quest for truth, and the motive for studying it is the desire for knowledge. So ethics, it is a part of the quest for truth, कि जो actual truth है उसकी तरफ बढ़ना, उसको जानना. इस रिस्पेक्ट में ये फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट से ज्यादा मिलता जुलता है than the natural sciences, where the practical applications are many and attractive. We naturally want to know the truth about things, and ethics aims at finding out the truth about something that is both interesting and important. हमारे अंदर इच्छा होती है, हमें सच जानना होता है कि यार ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ. We often ask, उसने ऐसा क्यों करा. We are, क्योंकि हमें सच जानना है कि what was the reason of something happening. उसी तरीके से एथिक्स भी किसी चीज का ट्रूथ निकालने के लिए उसका एम यही होता है कि टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ इन समथिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो इंटरेस्टिंग है. द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. कोई गारंटी नहीं है कि एक मैन who understands by means of ethical study the difference between right and wrong will necessarily follow the right. ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि एथिकल स्टडी करने के बाद एक ऐसा पर्सन जिसे राइट और रॉन्ग के बारे में ऑलरेडी पता है फिर भी वो सिर्फ राइट को फॉलो करे. दैट इज नॉट पॉसिबल. A theatre audience is always amused at the unlettered man in a modern comedy who tries to save his scholarly brother from choosing evil courses by reminding him that he won a university prize in moral philosophy. In spite of the teaching of Socrates that knowledge is virtue, and it's commonly recognized that a mere knowledge of ethical principles is not sufficient to keep anyone in the paths of virtue. तो यही बात है कि नॉलेज मतलब यही है कि अगर हम भले ही हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज है, स्टिल इसका मतलब हमें पता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए. इसके बावजूद जरूरी नहीं है कि वी मे ऑलवेज डू द राइट थिंग, पिक अप द रॉन्ग एक्शन. It has already been said that the example of good men's lives and the training of practical experience are likely to be more effective influences in producing good conduct. तो प्रैक्टिकलिटी एंड एक्सपीरियंसेस जो है वो ज्यादा एक इंसान को इन्फ्लुएंस करता है रादर देन जस्ट स्टडी ऑफ एथिक्स. हम लोग अभी एथिक्स के बारे में बुक में पढ़ रहे हैं, इट मे सीम ऑल गुड, बट जरूरी नहीं है कि हम बाहर जाके ओनली एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें. बट व्हेन वी लर्न इट प्रैक्टिकली, जब हम उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं इन सम वे और द अदर, हमें पता चला कि आपने सपोज बचपन में झूठ बोला था और आपके झूठ बोलने पर आपकी मम्मी ने आपको मारा या फिर आपकी मम्मी ने आपको कोई पनिशमेंट दी. So that is an experience. आपको एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए. At the same time, there is no reason to doubt that if other influences are favorable, the knowledge of ethics will become self-help in the pursuit of goodness. इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉलेज को टोटली डिसरिगार्ड कर दें कि यार पढ़ने से तो कोई फायदा ही नहीं होता. नो, इट डज हेल्प अस. कहीं ना कहीं ये काम में आता है, 100% काम में आता है. It may do so by the way of casuistry. The student of ethics is more likely to be right in his application of moral codes to a particular case than the man who has an equal knowledge of the circumstances of the case but no knowledge of ethics.
तो दो केस देखिए, एक है स्टूडेंट ऑफ एथिक्स जिसने इन लॉज के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, एथिकल लॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, एंड दूसरा एक मैन जिन्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता क्या होता है एथिक्स, एथिक्स के रूल्स लॉज क्या होते हैं, लेकिन उस मैन ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करा हो सकता है। तो इट इज पॉसिबल कि दोनों एक ही एक्शन करे, दोनों गुड एक्शन में इंगेज हो। He is likely, among other things, to be less biased and more comprehensive in his outlook. And the chief value of ethics is not in the guidance it gives in particular cases, but in the development of width of outlook and seriousness of purpose in dealing with moral matters generally. These are qualities of outstanding and permanent value in the good man, and there is every reason to think that the student of ethics has more chance to attain them than the mere ordinary man. तो ये बात लेकिन जरूर है, भले ही वो नॉलेज जो है वो हमारी इतनी हेल्प ना करे, लेकिन एक बात जरूर है कि एक स्टूडेंट ऑफ एथिक्स जिसने एथिक्स के प्रिंसिपल्स और लॉज के बारे में पढ़ा हुआ होता है, वो गुड एक्शन को अक्वायर करने में ज्यादा फेवरेबल होता है देन एज कम्पेयर टू एनी अदर ऑर्डिनरी मैन। सो विद दिस हमारा ये खत्म होता है। वी डोंट हैव द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल एक्शन, वी विल नाउ गो टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। The development of morality. अब देखिए ये फर्स्ट टॉपिक ओके शॉर्ट है, आई थिंक वी विल कंप्लीट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड द सेकंड टॉपिक आई थिंक इज अ बिट लॉन्गर. यस वी कैन कंप्लीट विद फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक. लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी. अब लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, अभी हमने मोरालिटी मतलब हमने पढ़ लिया एथिक्स वगैरह के बारे में, अब हम देखते हैं कि हाउ टू डेवलप मोरालिटी इन वन सेल्फ, या क्या क्या लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट, लेवल ऑफ कॉन्शियस, ऑल दीज थिंग्स. We may distinguish between three stages in the development of morality. तो development होने में तीन stages होते हैं. पहला होता है level of instinct, level of custom, level of conscience. These are the three stages. अब पहला stage level of instinct. इसमें क्या होता है कि जो conduct है that appears right to the agent is the conduct determined by his fundamental needs and instincts. तो एक पर्सन जो उसकी जो नीड होगी वो उसके इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से एक चीज को सही या गलत मानेगा. ठीक है, जो कि मैकडूगल ने डिस्क्राइब किया था. सेकंड फिर आता है लेवल ऑफ कस्टम. अब लेवल ऑफ कस्टम में हमें वो चीज सही लगती है जो हमारे कस्टम से हमें हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, हम हमारी सोसाइटी से जिन चीजों को सीखते हैं, हमारे ट्रेडिशन से जिन चीजों को सीखते हैं. और थर्ड आता है लेवल ऑफ कॉन्शियस, जिसमें कि जो हम कंडक्ट या एक्शन कर रहे हैं दैट अपीयर्स राइट टू द एजेंट. अब वो तभी हमें सही लगता है जब वो हमारे खुद के जजमेंट के बाद हमने उसको अप्रूव करा होता है. We have no sufficient grounds to maintain that the development from one stage or level to another is a historical development. The most primitive societies with which we are acquainted at the present day show approval of a great deal of conduct that is in accordance with the custom of the particular society concerned, and there are some matters even in such societies where the individual judgment seems to provide the standard of rightness and wrong. तो अभी तक हमने देखा है कि level of custom ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है in determining the rightness and wrongness of a thing. और कहीं कहीं पर इंडिविजुअल जजमेंट्स भी आया है. इवन इन द मोस्ट एडवांस सोसाइटी देयर विल बी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट. चाहे हमारी सोसाइटी कितनी भी एडवांस हो जाए, कितनी भी फ्री हो जाए, हमारे पास लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट रहेगा. एंड दैट लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट विल ऑलवेज अराइव फ्रॉम आवर नीड्स. जो हमें हमारी अगर जरूरत होगी तो हमें उस हिसाब से एक्शन सही या गलत लगेगा. जब एक इंसान लाल रंग को देखता है, फॉर द मोमेंट दैट thinks that seems to him the only appropriate thing to do so is an act of violence which is approved neither by the standards of his group nor by his own reflected judgment when he is in a calmer state of mind. तो जब कोई इंसान एकदम से रेड कलर को देखता है, उसका पहला इंट्यूशन जाता है वायलेंस की तरफ, उसका पहला इंस्टिंक्ट जो है वो वायलेंस की तरफ जाता है. जबकि वायलेंस जो है वो ना तो लेवल ऑफ कस्टम अप्रूव करता है ना ही लेवल ऑफ कॉन्शियंस, लेकिन फिर भी लेवल ऑफ इंस्टिंक्ट ने रोल प्ले करा. The most conscientious individual in a modern society is likely in most matters to follow the customs of his group without reflection, and only in one or two special matters to adopt deliberately a new standard of his own, different from that of those around him. तो एक मॉडर्न सोसाइटी में सबसे conscientious, I think I'm just slipping the word, I think it's conscientious. Oh my God, sorry. तो एक उसके लिए सबसे कॉन्शियस मैन वही होगा, सबसे राइट मैन वही होगा जो उसके ग्रुप के कस्टम्स को ब्लाइंडली फॉलो करे विदाउट क्वेश्चनिंग देम.
We are rather in this chapter describing a logical order in the development of the moral judgment, and in doing so, we are in danger of ignoring the many complications to be found in men's actual judgments at the different levels of development. तो हम लोग इसमें of course basic 3 levels के बारे में बात करेंगे, जो 3 levels जनरली हम देखते हैं कि moral development में आता है. So I think we'll start with the 3 levels in the next video. So stay tuned on the channel. Bye bye. See you. Any questions, any doubts, anything that you want me, always you can comment and I'm ready to reply.